Hello students, welcome you all. As you know that in previous classes we just learned about the revenue system which was applied by British government, or we can say that it is applied by uh, East India Company. Now we have to move on. What are the aspects of the revenue systems and what they include in their aspects? So here we start. It imposes collection of revenue in cash. So first point is that they were preferring cash only to collection of revenue. It forced thousands of villages to cultivate cash crops. So now what is cash crops? Which generate most of the profit in British area. For the British area or for EIC company, that were called cash crop, just like that indigo, jute, cotton, that type of crops were called cash crops. The company created two posts of deputy Diwani, uh, one for Bengal and the other for Bihar. So the company created two posts of deputy Diwan, one for Bengal and other for Bihar, because they are two basic or major points for their rule. For greater profit, the land revenue was now formed out annually to the highest bidder. So these are the points. Now we have to move the ill effect of the system soon become visible. These were जो कि इसके सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाले, इस सिस्टम को अप्लाई करने के बाद सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाले जो पॉइंट्स थे वो क्या थे और जल्दी वो नज़र में आने लगे थे लोगों को. The village which produced only cash crops had to depend on other villages for food supplies. Okay, as the tax collector was only interested in the collection of more and more revenue, he hardly paid any attention to improve the quality of land. So, the village which produced only cash crops had to depend on other village for food. बिकॉज कैश क्रॉप ऐसी क्रॉप है बेटा, अगर एक बार उसका कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया जाए तो फिर उस लैंड पे आप किसी और तरह का कल्टीवेशन नहीं कर सकते. द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड विल बी गोस down, and were only uh, good for it was only good for the it was only good for the normal crops. So as the tax collector was only interested in the collection of more and more revenue, he hardly paid by any attention to improve the quality of land. So as you know, अगर लैंड का फर्टिलिटी कम हो जाए तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है ना. लेकिन जो उस वक्त पे टैक्स कलेक्टर्स होते थे, जो जमींदार लोग होते थे, वो रेवेन्यू कलेक्ट करने में इतने ज़्यादा बिजी कर देते थे खुद को कि वो ये भूल जाते थे कि जो पेड हम अटेंशन देनी चाहिए लैंड की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, लैंड को अच्छा करने के लिए, लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वो नहीं कर पा रहे थे. सेकेंड पॉइंट इज दैट. थर्ड पॉइंट इज द पुअर पीसेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय द टैक्स कलेक्टर. The poor peasants were exploited by the tax collector. जो poor peasant थे वो क्या exploited, उनका शोषण किया जाता था टैक्स कलेक्टर के जरिए. ठीक है. ड्यू टू देयर हार्श taxation policies, many peasants left their village while any become landless. तो जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट वाली जो चीज़ है वो यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब उस टाइम पे भी पीछे रखे जा रहे थे, है ना. अगर कोई भी किसी भी विलेज में रहता है और सपोज करो उसका क्रॉप अच्छा नहीं हो पा रहा, उसका कल्टीवेशन इतना अच्छा नहीं हो पा रहा, तो क्या होता है कि जो जमींदार है वो या फिर जो टैक्स कलेक्टर है वो उस पीसेंट को और ज़्यादा
और ज़्यादा उसका एक्सप्लोटेशन करना स्टार्ट कर देता है, और ज़्यादा उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। ड्यू टू their harsh taxation policies, many peasants left their villages while many become landless. So, as you know, जो हार्श पॉलिसीज है, इन हार्श पॉलिसीज की वजह से क्या बहुत सारे पीसेंट्स ऐसे थे जो गांव छोड़ के चले गए, या तो जो विलेज था उसको छोड़ के चले गए, या बहुत से लैंडलेस हो गए, मतलब बिना जमीन के हो गए। अब वो पूरी तरह किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे बेटा? दूसरे लोगों पे, अपने फूड के लिए और अपनी बाकी चीजों के लिए दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट हो गए थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हो गया। ठीक है। साइमल्टेनियसली ट्रेड एंड कॉमर्स आल्सो सफर। इसी तरह जो, अगर बेटा कल्टीवेशन यूं कहें, हम फार्मरी यूं कहें, ये हर एक इंडस्ट्री को इफेक्ट करती है। अगर कल्टीवेशन में, फार्मरी में अगर हमारा इफेक्ट आता है तो वो हर जगह पे किसी ना किसी तरह से सफर करना पड़ता है लोगों को, कॉमर्शियली हो या ट्रेड पे बेस्ड हो। A setback in Bengal, the Indian goods were bought at very low rates from the workers and sold back in Europe at much higher prices. The weavers of silk and the artisans were compelled to work under harsh conditions. So, thus the skill of workers got ruined under oppression. The famine of Bengal in 1770 clearly highlight the plight of the people when about one third of the population was killed, because it's affected। आज भी आप उस famine की जो निशान है वो देख सकते हैं। 1770 में जो बंगाल फेमाइन आया, उसकी वजह से वन थर्ड ऑफ पॉपुलेशन पूरी तरह से बंगाल की खत्म हो गई उस वक्त। तो स्किल वर्कर गॉट ड्रून अंडर ऑपरेशंस। स्किल वर्कर जो, जिनके पास हुनर होता है, जिनको काम करना आता है, जो भी आप काम देते हैं उनको काम करना आता है, तो वो इस बीच में तबाह हो रहे थे, रून हो रहे थे। ठीक है। अब देखो, और यहाँ पे क्या हो रहा है, द वेवर्स ऑफ weavers of silk and the artisans were compelled to work under harsh condition। उनको जबरदस्ती ही इस तरह की कंडीशन में वर्क करने पे वो मजबूर हो गए थे। ठीक है। The officials of the EEIC soon realized that a systematic approach to land revenue collection was needed to secure the maximum amount of revenue in a timely and predictable manner। So soon ही EIC कंपनी के जो हायर अथॉरिटीज है, जो कमांडर्स हैं, है ना, उनको ये रियलाइज हो गया था कि एज सुन एज हमें हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, वो कलेक्शन बिल्कुल सही करना होगा, उसको अच्छे से करना होगा, अच्छे से अप्लाई करना होगा, किससे कितना रेवेन्यू लेना है ये डिसाइड करना होगा। अगर हम ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं, इसको नहीं सिक्योर कर पाते हैं, तो हमारा जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू है वो हम जनरेट नहीं कर पाएंगे टाइम पर, है ना। और इन हमें क्या, एक प्रिडिक्टेबल मैनर में वो चाहिए। सो दे इनिशिएटेड द वेरियस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। तो इसी वजह से उन्होंने क्या, अलग अलग तरह के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट को बनाया। एक कंटेंट है पास से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। द अर्ज टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू डायरेक्टली लीड टू द बंगाल फेमाइन ऑफ 1770, in which one third of the population of Bengal perished and agriculture was abundant in many parts of Bengal. The richest province of India had the first taste of impoverishment under the colonial rule. Okay, so the major issue for revenue arrangement in a proper manner is the famine of Bengal, because it affected one third of the population uh, of Bengal. So, the richest province of India
had the first taste of impoverishment under the colonial rule. Okay, now major land revenue settlement. The first reform introduced by the company came in the form of the Ijardari system. It was followed by the three other type of land revenue arrangement introduced during the latter half of the 18th century through to the 19th century. These were the permanent settlement, the Mahalwari settlement, and the Rayatwari settlement. Okay, Ejardari settlement or Ejardari system. As the first Governor General of the EIC, Warren Hastings realized that income from land revenue was not enough to meet the expense of the company. A massive famine that broke out in Bengal further reduced revenue to a great extent. So he decided who the Governor General Warren Hastings decided to introduce a system by which the right to collection could be given to the highest bidder for 5 years. This system came to be called Egyptari system or revenue farming system. Those who were given this right came to be known as Egyptari. However, the shortcomings of this system soon resulted in its failure. One of the most important resources was that bidding had no link with the land's actual productivity. Besides, the internet was shown by the Egyptari improving the land become it was counted periodically as Egyptari wanted to get more and more revenue to pay to the company. Peasants were subjected to relentless exploitation. तो भाई बेसिकली बात क्या कहना चाह रहा है, 5 साल के लिए किसी भी एक हायर अथॉरिटी को वो यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं किसके लिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, है ना। इस सिस्टम को इजतदारी क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि ये फार्मिंग सिस्टम से रिलेटेड था पूरी तरह से, ठीक है। दोज हु वर गिवन द राइट कैम टू बी नोन एज इजतदार्स, ठीक है। जो भी इसका राइट लेता था उसको इजतदार कहा जाता। हाउएवर द शॉर्ट कमिंग ऑफ द सिस्टम soon result state in its failure। तो भाई कोई प्रॉपर मैनर ना होने की वजह से, एक सही सिस्टम ना होने की वजह से जल्दी ही इसके अंदर लोगों को क्या मिल गई, हार मिल गई, मात खानी पड़ी, मात मिल गई, ठीक है। अच्छा, एक और बात, besides no interest was shown by the Egyptians in improving the land because it was auctioned periodically। देखो बेटा क्या हो रहा है भाई, जो हमारा 5 साल का उनका एक नेटिव था कि 5 ईयर तक उनको उस पर वर्क करना था, 5 ईयर तक वो उस लैंड पे रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन 5 ईयर के बाद वो किसी और को दे दिया होता। इस वजह से क्या इजतदार भी इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं ला पा रहे थे, वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कर पा रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से कंपनी को इस सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया उस वक्त पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं परमानेंट सेटलमेंट पे। परमानेंट सेटलमेंट क्या है, द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। इट कन्वर्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड बनारस डिवीजन ऑफ यूपी। इन्होंने कौन से, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस डिवीजन को बनाया यूपी में। Accounting for 90% of the British territories. According to this system, landowner or zamindars acquired hereditary right over land। भाई देखो क्या, जमींदार जो होते थे, है ना, उनकी पुश्तें, आने वाली पीढ़ियां वही उस लैंड के ऑनर होंगे, ये फिक्स कर दिया गया।
farmers were reduced to the state of tenants. Farmer were reduced to the state of tenant. These tenants lost the right to the use of pastures and forest land. तो भाई टीनेंट्स क्या, जो आदिवासी लोग जो है ना हमारे, वो उनको क्या एक राइट होता था कि वो जो फॉरेस्ट लैंड था, जो पैस्चर लैंड था, उसका पूरी तरह से यूज कर सकते थे, है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इरिगेशन कैनाल एंड फिशिंग पॉन्ड्स, इरिगेशन कैनाल एंड फिशिंग पॉन्ड का भी यूज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे उनको ये प्रोवाइड किया गया, ठीक है। और जमींदार्स हैड टू पे अ फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू every year to the company, even if there were adverse conditions such as floods or droughts. If they failed to pay land revenue, their land would be auctioned off. भाई अगर देखो, जमींदार को क्या एक फिक्स अमाउंट पे करना है, मतलब करना है एक साल के अंदर कंपनी को, ठीक है। चाहे वो लैंड रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हो नहीं कर पा रहा हो, अगर आप जमींदार हो तो आप कहीं से भी उस जमींदारी को पूरा करोगे उस, ठीक है। अगर इवन इफ देयर वर एडवर्स कंडीशन क्या कही जा रही है, अगर फ्लड आ जाता है, फेमाइन आ जाता है किसी भी तरह से उस लैंड पे, है ना, और आप में के यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो पाए, तो क्या होता है उस लैंड को क्या ऑप्शन ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। उस लैंड को ऑप्शन ऑफ कर दिया जाता है। वट एवर रिमेन विद द जमींदार आफ्टर पेइंग द रेवेन्यू वाज हिज प्रॉफिट। अब रेवेन्यू देने के बाद जो कुछ भी बचता है, ठीक है, वो जमींदार का प्रॉफिट होगा। तो इनिशियली 89% ऑफ ऑल द revenue collected was handed over to the company and only 11% remained with the zamindar। तो बेसिकली देखिए, देखा जाए तो 98% जो है 89% जो है वो रेवेन्यू कंपनी को दे दिया जाता था, और 11% रेवेन्यू ही बचता था रिमेनिंग, ठीक है, जो जमींदार लोगों के काम आता था। नाउ इसके पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं, इसके पॉइंट्स क्या है, ठीक है। द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट roughly 50% of the total produce। दिस रेवेन्यू, टोटल प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 50% आपको कंपनी को देना है, ठीक है। दिस रेवेन्यू वाज फिक्स परमानेंटली फॉर नेक्स्ट 10 years। और ये रेवेन्यू जो है वो आपका आने वाले 10 years के लिए फिक्स हो जाएगा। अब आपकी जमीन पे कल्टीवेशन हो पा रहा हो, क्रॉप जनरेट हो पा रही हो, नहीं हो पा रही हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ द सिस्टम टू द कंपनी वर, एडवांटेज क्या थे कंपनी को, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा ये परमानेंट सेटलमेंट। द कंपनी वाज एबल टू क्रिएट द क्लास ऑफ जमींदार्स एज देयर एले, who acted as the intermediary between them and the peasantry. They were expected to act as the natural ally in the event of any rebellion by the peasant। So, अगर जमींदारों को क्या कर दिया गया, क्लास वाइज इनको बांट दिया गया, है ना, who acted as a intermediately between them and the peasant। तो ये क्या एक मीडियम का काम कर रहे थे बीच में, क्योंकि जमींदार जो है एक मीडियम का काम कर रहे थे पीसेंट और कंपनी के बीच में। सपोज करो अगर कोई भी इसका विरोध करता है, कोई भी पीसेंट रिबेलियन पे आ जाता है, ठीक है, तो उस वक्त पे क्या ये नेचुरली एले की वजह से उनको काबू में कर सकते थे, उनके पास ये अधिकार थे, क्योंकि अंडर द न्यू सिस्टम द इनकम ऑफ द EIC फ्रॉम लैंड रेवेन्यू वाज सिक्योर, रेगुलर एंड स्टेबल। तो भाई जो रेवेन्यू सिस्टम था वो स्टेबल हो गया, ठीक है, रेगुलर हो गया और एक तरह से सिक्योर हो गया।
This helped the company to meet the growing expense of its military expedition and administration. तो भाई इससे कंपनी को क्या, उनका जो एक्सपेंस हो रहा था, है ना, उसको कम करने, उसको अच्छी तरह से बनाए रखने में, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेट करने में मिलिट्री एक्सपेंसेस को सुविधा मिल रही थी उनको, ठीक है। जमींदार्स वर मोटिवेटेड टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज द रेट ऑफ रेवेन्यू टू बी पेड टू द ब्रिटिश वाज फिक्स। जमींदार वाज मोटिवेटेड टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो भी लैंड रेवेन्यू जनरेट होगा, उसका 50, उसका 11% तो जमींदार को मिलना ही है ना, फिक्स है वो तो इस वजह से वो ज्यादा इस पे ध्यान देने लगे। दे कुड कीप द सरप्लस आफ्टर पेइंग देयर ड्यू टू द कंपनी, है ना। और अगर आप रेवेन्यू खत्म कर देते, एक बार जो भी रेवेन्यू कंपनी को देना है वो आप दे चुके हो, अब अगर कुछ भी अमाउंट बचता है, कुछ भी रह जाता है, तो वो किसका होगा? जमींदार लोगों का होगा, ठीक है। सो वी विल लर्न अबाउट इन नेक्स्ट क्लास इफेक्ट्स ऑन द पीसेंट्स। पीसेंट्स पे किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे थे उनके लाइफ में, है ना, उनको क्या दबाव दिए जा रहे थे, उनके ऊपर किस तरह प्रेशर बढ़ाया जा रहा था, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।